processes. So let's continue the same chapter. This is chapter number 5 of your NCERT, and it weightage I've already told you 9 to 10 marks questions usually come from this chapter, and one of the biggest chapter of biology. Okay, so we have discussed, as far we have discussed nutrition, we have discussed respiration, and we have discussed transportation. Like circulation we have discussed. Now one more point that is very important, that is blood pressure. When it comes for circulation, blood pressure is also a small topic of it, of transportation. Blood pressure means the pressure exerted by the by the blood on the walls of arteries. That is why the walls of arteries are thick and veins are thin. We have discussed, remember we have discussed the difference between arteries and vein. Like arteries carries oxygenated blood, veins carries deoxygenated blood. And arteries are present deep inside the body, veins are present superficially. Exceptions also we have discussed, that pulmonary artery carries deoxygenated blood and pulmonary vein carry oxygenated blood. And arteries do not have walls, but veins have walls. And what is the function of walls? They do not allow to backflow of the blood. And arteries walls are thicker because whenever blood is going to pump by the heart, it exert a pressure. तो एक प्रेशर के साथ जो आर्टरीज में जाता है, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर. सो द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज by blood is known as blood pressure. Okay, so blood pressure measured by a instrument called sphygmomanometer. So it is measured by an instrument called sphygmomanometer, in which high and low blood pressure both measured. Okay, so the general is 180 by 20 ऑफ मर्करी. मर्करी का एक टेबल होता है, मर्करी के स्केल पे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है. सो 80 इज द लो ब्लड प्रेशर मिनिमम एंड 120 इज हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, बट इट कैन बी फ्लक्चुएट व्हेन एज पर द एज ऑल्सो, बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए. दिस इज द रेंज, दिस इज द एक्यूरेट वन कि 80 120 आपका ब्लड प्रेशर चल रहा है, दैट मीन्स यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. नाउ इसमें एक और टर्म्स हम यूज़ करते हैं, दैट इज सिस्टोलिक and diastolic blood pressure. ओके तो हमें ये पता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हम बात करते हैं तो मीन्स हमारा जो ब्लड है, हम बोलते हैं धक धक करता है. दिस इज नॉट धक धक, इट इज लब एंड डब. जो वर्ड यूज करते हैं जो होता है दैट इज नोन एज लब एंड डब. हमने पढ़ा था वॉल्व्स होते हैं, राइट साइड में भी वॉल्व होता है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में. तो ये वॉल्व्स ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उससे क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे हम दैट इज नोन एज हार्ट बीट. सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मीन्स जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन is known as systolic blood pressure and ventricular relaxation is known as diastolic blood pressure. Okay, so one is 80, another one is 120. So this is all about blood pressure. One more thing is there, that is hypertension. Hypertension means बहुत ज़्यादा जल्दी ब्लड का हार्ट का बहुत जल्दी पंप करना, ठीक है. वो 2-3 रीज़न से होता है. कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, जब आर्टरीज के चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो जितने प्रेशर से जितना ब्लड अंदर जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता, तो हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है. हार्ट हैज़ टू पंप मोर. जितनी क्वांटिटी उसमें जानी चाहिए वो नहीं जा रही है, तो थोड़ी क्वांटिटी जा रही है, तो ब्लड को बार बार पंप करना पड़ेगा. हार्ट हैज़ टू डू लॉट ऑफ वर्क. सो दिस इज नोन एज हाइपरटेंशन. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस others problems are there is a cause of heart attack also. Because of hypertension, heart attack can be there, cardiac arrest can be seen. So this is all about blood pressure. Now let's start हमने transportation in animals पढ़ लिया कि transportation animals में होता है through heart.
पढ़ा हमने सर्कुलेटरी में कि हार्ट होती हैं, वेसल्स होते हैं, इवन ब्लड होता है, ठीक है, इन तीनों से हम सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं. बट देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ थिंग्स इन प्लांट एज वेल. सो लेट्स स्टडी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वी शुड नो द बेसिक टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट. हमने पढ़ा है प्लांट के में सिंपल टिश्यूज भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी होते हैं, ठीक है. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जब हम बात करते हैं दैट इज नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कॉम्प्लेक्स टिश्यूज विच आर प्रेजेंट इन प्लांट. कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, 9th क्लास में पढ़ा था कि जब कोई टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, बहुत तरह तरह के सेल्स हैं और वो मिलके एक काम करते हैं, तो वो टिश्यू बनाते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. और इन दोनों को मिला के, इन दोनों को ऑल टुगेदर वी यूज टू से वेस्क्यूलर बंडल. क्या टर्म यूज करते हैं हम? वेस्क्यूलर बंडल. दोनों को मिला के जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज वेस्क्यूलर बंडल. अब दोनों का काम क्या है? एक का काम है वाटर एंड मिनरल्स की सप्लाई, एक का काम है फूड की सप्लाई, ठीक है. सो थोड़ा डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. ये जाइलम, दिस इज फ्लोएम. अब देखो जाइलम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और मूवमेंट ऑफ फूड विल बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ओनली. अब दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जाइलम में जो मूवमेंट होता है दैट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल. ये प्लांट है, प्लांट में ये रूट्स हो गई, ये दिस इज शूट सिस्टम एंड दिस इज रूट सिस्टम, एंड ग्राउंड से ऊपर वाला क्या बना रहा है हमारा? शूट सिस्टम. अब यहाँ से पानी जब रूट सिस्टम से ऊपर जाएगा तो वापस उल्टा थोड़ी आ सकता है. सो जाइलम ऑलवेज वर्क इन यूनिडायरेक्शनल मैनर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोएम, ये तो यूनिडायरेक्शनल हो गया और फ्लोएम जो है हमारा बाई डायरेक्शनल हो गया. बाई डायरेक्शनल कैसे? यहाँ है लीव्स. लीव्स क्या है? किचन ऑफ द प्लांट, खाना बनाती है, फोटोसिंथेसिस. अब वो खाना ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. सो बाय डायरेक्शनल फ्लो किस में होता है? फ्लोएम में. एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जाइलम में. अब जाइलम भी जो है वो 4 कंपोनेंट का बना होता है, फ्लोएम भी हमारा 4 कंपोनेंट का बना होता है. पर जाइलम में ऑल कंपोनेंट्स आर डेड एक्सेप्ट वन, दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा. यहाँ पे all components are alive except phloem कायमा. ओके, तो ये जो डिफरेंस है दैट यू शुड अवेयर कि किसमें क्या होता है, क्या होता है. अब हम बात करते हैं कि हमारा मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है. सो द मूवमेंट ऑफ वाटर बेसिकली अकर because of 3 things. Very first thing is root pressure. रूट प्रेशर क्रिएट करती है और पानी को नीचे से ऊपर लेके जाती है. पानी का कंडक्शन नीचे से ऊपर कैसे हो रहा है? अगेंस्ट द ग्रेविटी. दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ leaves, okay, and by stomata in the form of water vapor, that is known as transpiration. तो उससे भी पानी, जितना पानी वो ट्रांसपिरेशन होता जाएगा नीचे से ऊपर चढ़ता जाएगा. एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है दैट इज नोन एज कोहेजन, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल. और तीसरा रीजन होता है दैट इज कोहेजन अडेशन. कोहेजन एडेशन मीन्स पानी खोलते हो, टैप ओपन करते हैं तो एक H2O मॉलिक्यूल निकलता है, फिर दूसरा H2O मॉलिक्यूल निकलता है. ऐसे तो नहीं होता, एक के बाद आता है. दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स दे हैव अ प्रॉपर्टी टू कोहेस विथ ईच अदर, मीन्स दे अटैच्ड विथ ईच अदर एंड दे कम एज अ सिंगल फ्लो. टैप खोलते हैं तो एक सिंगल फ्लो निकलता है. तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई हाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर अकर फ्रॉम ग्राउंड टू अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. ऐसे ही फूड है तो फूड जो होता है सोर्स और सिंक के जैसे काम करता है. मीन्स
हमारा सोर्स जो है वो है जहाँ पे फूड बन रहा है। सिंक मीन जहाँ कमी है, ऊपर स्टेम की तरफ कमी होगी तो वहाँ चला जाएगा, लीफ की तरफ कमी होगी वहाँ चला जाएगा, रूट की तरफ कमी होगी वहाँ चला जाएगा। सो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिपेंड करता है सोर्स और सिंक थ्योरी पे। एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एनर्जी in the form of ATP. So this is how transportation occur in plants and animals. अब यदि आपको पता करना है कि कौन से 4 कंपोनेंट है जाइलम में, कौन से 4 कंपोनेंट है फ्लोएम में, तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या काम करते हैं। So this is all about transportation in animals and transportation in plants. I hope it is clear. जब क्वेश्चन आता है हाउ ट्रांसपोर्टेशन अकर एंड व्हाट इज द रीजन हाउ दे आर एबल टू टेक वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी और अगेंस्ट द, तो देन यू हैव टू राइट 3-4 पॉइंट्स इन दिस। दैट आंसर शुड इंक्लूड द रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहेजन अडेसेंट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये 3 पॉइंटर्स आपको लिखने बहुत ज़रूरी है। विदाउट दिस द मार्क्स विल नॉट बी गिवन कंप्लीटली। ओके, लेट्स स्टार्ट द लास्ट topic or last system of this chapter, that is excretion. For excretion we have a excretory system in our body. अब बताइए, excretory system means खाना खा लिया, पचा लिया, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया, रेस्पिरेशन से क्या किया, उस खाने को ऑक्सीडाइज किया, एनर्जी करी, जो एनर्जी हुई और जो चेंजेस हुए वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पूरे बॉडी में पहुंचा दिए। अब उसके अलावा भी हमारे ब्लड में बहुत सारे अनवांटेड रिक्वायर्ड मटेरियल होते हैं दैट हैज़ टू रिमूव आउट ऑफ द बॉडी, नाउ इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। So then there is a dedicated system for the same which is known as excretory system. Okay, so whatever the waste thing is there that has to be removed out in the form of urine, it is done by excretory system. Now next question arise कि यदि ये toxic material body से बाहर ही नहीं निकले तो क्या होगा? What will happen if they will not remove from your body? So what will happen, because they are toxic and eventually it will affect the functioning of your body and gradually the person can die after some time. So it is very necessary to remove out the waste material from our body. ठीक है, let's start the human excretory system. A general thing is there, one pair of kidney. अब किडनी का शेप कैसा है देखो, bean shaped. One pair of kidney is present. Now kidney is attached with the tube like structure which is known as ureter. So this is your kidney. अब ये जो बनी दैट इज यूरेटर। अब ये यूरेटर जहां आता है दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। थैला होता है एक, यही है वो चीज, यूरिनरी ब्लैडर। एंड द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर विच इज फ्रॉम दिस द वेस्ट मटेरियल्स कम्स आउट, दैट इज नोन एज यूरिथ्रा। what do we call it? यूरिथ्रा। चलिए एक बार वापस रिवाइज करते हैं। One pair of kidney, okay, one pair of kidney, one pair of ureter, the tube which is coming out of the kidney which passes the urine or waste material from kidney to urinary bladder, and there is a place where the urine has to store. ऐसा नहीं कि हर 2 मिनट में, क्योंकि डायलेशन का काम तो चल ही रहा है, किडनी अपना काम कर ही रही है, 1 मिनट भी रुकती नहीं है, तो आपका वेस्ट मटेरियल फिल्टर तो होते जा रहा है, पर ऐसा नहीं कि आपको पूरे टाइम वॉशरूम जाना है। There is a certain capacity which urinary bladder can hold, and afterwards it has to, when it becomes fill, so it will give message to brain, yes now it is filled, and there is a urge of urination which is also known as micturition. ठीक है, जब यूरिन करने की जब हमारी बॉडी को सिग्नल मिलता है, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है, दैट इज नोन एज micturition. Okay, so यहाँ and the pore by which the urine comes out, that is known as urethra. Okay, अब किडनी देख लेते हैं। किडनी a bean shaped structure. Okay, inside kidney there is a filtering unit which are known as nephrons. तो
तो किडनी ऐसे थोड़ी काम करती, किडनी के अंदर जो प्रेजेंट होती है दैट इज अ फिल्टरिंग यूनिट विच इज नोन एज नेफ्रॉन्स. मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एंड किडनी इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला. दो तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वन इज कॉर्टेक्स, अनदर वन इज मेड्यूला. सो बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है दिस वे इट इज नोन एज कॉर्टेक्स, और अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज मेड्यूला. ठीक है, और इसी के अंदर अरेंज होते हैं नेफ्रॉन्स. सो फिल्टरिंग यूनिट की हम जब बात करते हैं, व्हाट आर द फिल्टरिंग यूनिट प्रेजेंट इन किडनी. अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछेंगे. एक आपको क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज द फिल्टरिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, तब किडनी, एंड फिल्टरिंग यूनिट of our body that is nephrons. So millions of nephrons are there. Let's study how nephrons will work. अब nephron का structure है usually एग्जाम में बनाने को भी आता है और बनाने ना भी आए तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है कि बताइए कि ये क्या है. इट हैज़ कम टू आइडेंटिफाई ऑल्सो कि ये पार्ट क्या है, वो क्या पार्ट है, तो देख लीजिए. नाउ इट हैज़ अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बोमीन्स कैप्सूल. ओके, और इसके अंदर एक जाल होता है कैपिलरीज का विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस. ठीक है, वापस बताती हूँ. तो दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारा जाल होगा विच इज नोन एज ग्लोमेरुलस. यहां से पहले होगा फिल्ट्रेशन. तो ये जो पार्ट है दैट इज डूइंग फिल्ट्रेशन. ब्लड आया, अब ब्लड आएगा कैसे, ब्लड का सोर्स होना चाहिए. सो रीनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग ब्लड ओवर हियर, और रीनल वेन जो है वो यहाँ से निकलती है. तो दोनों चीजें इसमें आ रही है. ठीक है, और वो वेस्ट मटेरियल लेके आ रही है. ठीक है, वेस्ट मटेरियल आया, यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ. यहाँ फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी चीज है वो आएगी यहाँ पे. अब इसको हम बोलते हैं PCT, और इधर वाले पोर्शन को बोलते हैं DCT. PCT मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और DCT मीन्स डिस्टल, प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाली, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये जो पोर्शन है दैट इज फॉर रीअब्जॉर्प्शन. रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन मीन्स एक बार फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद इस लूप में आया. जैसे इस लूप में आया, इसमें लूप में आने के बाद क्या हुआ, मे बी इट हैज सम काइंड ऑफ अमाइनो एसिड, मे बी इट हैज सम ग्लूकोज, मे बी इट हैज सम अदर इंपॉर्टेंट मटेरियल विच हैज टू बी रिटेन आवर बॉडी. सो अगेन इट विल बी reabsorbed and again it will send with the help of capillaries to arteries and vein, and again it has sent to our body. अब यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वॉट एवर इज कमिंग टू दिस ट्यूब, द ब्रांच ट्यूब विच यू कैन सी, इट इज नोन एज यूरिन. फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, आफ्टरवर्ड वॉट एवर वेस्ट इज देयर देन इट इज नोन एज यूरिन, एंड इट कम्स टू द कलेक्टिंग ट्यूब. अब ये लास्ट वाला पोर्शन है कलेक्टिंग ट्यूब, और ये सारी कलेक्टिंग ट्यूब है दैट हैज टू मर्ज ओवर हियर, यहाँ मर्ज होती है. देन इट इज रीच टू यूट्रस, फिर यूट्रस में यूरिन आता है, एंड देन इट इज रीच टू यूरिथ्रा. यहाँ पे स्टोर हुआ, और एक कैपेसिटी के जब वो फिल होगा देन इट विल कम आउट थ्रू यूरिथ्रा. अगेन आई एम रिपीटिंग. ओके, सो बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, renal artery, this is renal artery, this is renal vein. Okay, so if question may come what are the steps of formation of urine, very first step is filtration, second step is reabsorption, and then there is excretion. These steps you have to write. So filtration यहाँ हो गया, then यहाँ पे हमारा reabsorption हो गया, and then there is a collection, and then it has to move out of the body. So this is all about excretory system of a human being. ठीक है, अब excretory system तो हमने देख लिया. ठीक है, we have discussed, एक बार नोट कर लीजिए यदि आपको कुछ देखना हो तो.
ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सपोज अपनी किडनी काम नहीं कर रही है या कम काम कर रही है, तो फिर पहला क्वेश्चन ही मैंने ये बोला था कि भाई फिर तो आप लोगों को आपकी बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे होते जाएंगे एंड इवेंचुअली दैट पर्सन health will deteriorate and after some time it can die also because of this. But अभी medical ने इतनी they have taken a lot of progress in that. So you have also seen and you have also heard the term dialysis. So this is what when any person's kidney is not completely functioning or 100% is not working. यदि आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, then the person has to clear its blood to remove the waste material from the blood artificially. Okay, and it is done by the process known as dialysis. The other name of this is known as hemodialysis. He means blood, dialysis means to clear and to clean the blood. So this which is done artificially. What we have to do, the person has to seek a doctor and then the blood has to remove from its body. धीरे से ब्लड निकालते हैं, either from the hand also, either from the leg also, whatever it is feasible, then has to go in a machine which is known as a dialyzer, okay, which has the same kind of thing which our kidney is having artificially. और वहाँ blood pure होता है and then again that blood has to be come out injected into the same person's body. It's a costly process as well as it depends upon how much the kidney is functional as per the frequency has been decided. If the kidney is working okay but not properly, then can be done dialysis 15 days, once in 15 days. If it is very less working, then it can be done alternatively or maybe every day as well. So this is known as hemodialysis. तो ब्लड को बाहर निकालते हैं. नाउ फ्यू थिंग्स वी हैव टू टेक केयर. ब्लड को बाहर निकालेंगे देन कोगुलेशन के चांसेस होते हैं. तो that machine and the process take care that the blood should not coagulate outside of the body. So the temperature of the blood they have to reduce. और जब हमारी बॉडी में वापस क्लियर ब्लड इंजेक्ट करते हैं तब टेम्परेचर को वापस क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, सो दैट the person should not feel chills. Okay, so this is how dialysis work. Hemodialysis, it's a boon to that person those whose kidneys are not working properly. अब excretion हमने plants animals में तो देख लिया, प्लांट भी excrete करते हैं. तो प्लांट में excretion का कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता. तो हमने देखा है कि कभी कभी प्लांट से गम रेजिन्स निकलते हैं. तो दीज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट. समटाइम द लीव्स बिकम ड्राई एंड इट ऑल्सो मूव आउट फ्रॉम द प्लांट, उससे निकल जाते, डिटैच फ्रॉम द प्लांट. इट ऑल्सो कंटेन अ वेस्ट मटीरियल एंड अदर देन दैट द प्लांट इज ऑल्सो हैविंग ऑक्सीजन एज अ वेस्ट मटीरियल विच हैज रिमूव्ड आउट फ्रॉम द स्टोमेटा. Okay, so these are the few waste material of the plant. Like oxygen is also waste material for the plant. More means required amount से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट को नहीं चाहिए. सो व्हाट डज ऑक्सीजन भी स्टोमेटा से हम बाहर निकाल देते हैं प्लांट्स. अदर देन दैट रम, ओके, एंड रेजिन्स, गम, रेजिन्स, okay, and some dry leaves and all, it also have the waste material of the plant. So this also remove out from the plant. So these are the waste material which usually occur in the plant and they don't have any specific things. And questions कभी कभी ये आता है कि रेजिन्स और ये सब किस में स्टोर रहते हैं. तो दैट इज द जाइलम टिश्यू. ठीक है, so that you have to take care. So this is all about the excretion. Okay, if any question, any query is there, do message me. Thank you.